Hey guys, welcome back to another video. Today we are going to have a discussion on all the key sectors which looks quite promising for the upcoming year, which is year 2025. Today is 31st of December 2024, last day of the year, and I really hope like this year went great for you, unlike the Indian cricket team, like by giving the last heartbreak of the year by not qualifying or by missing the World Test Championship ka final. And we are down in the series as well. Australia is up in the series by 2-1. Don't know, like, we can see some of the retirements by the end of the series as well. Um, mm, and let's keep all these disappointments aside. There are certain sectors which looks more promising than the Indian cricket team ka batting lineup. Sorry for the joke. But let's move on to the video. So let's deep dive into it. First of all, I will try to upload this video by today itself or by 1st of Jan. So you will get this video as soon as possible. So by looking at the future trends, so there are around 7 to 8 sectors which we will be focusing on for the upcoming year. And the as always I talked about कि like हर बार हमें वही sectors देखने चाहिए which are into tailwinds as of today's point of view. So some of the key sectors which I want to show you is one of the hotel sector. I have already discussed about this sector in my earlier videos as well, but not able to make the video. So like I just show you some of the examples. अच्छा, if you want to know about कि like यार कौन कौन से sectors में you don't know about the companies की कौन कौन से sector में कौन कौन सी companies है, no need to go like worry for that. Just स्क्रीनर पे यू जस्ट फाइंड स्क्रीन्स एंड देर आर ऑल द सेक्टर्स, मतलब लाइक बैंक्स हो गए, तुम्हारा टेक्सटाइल हो गया, तुम्हारा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो गई, तुम्हारी कंस्ट्रक्शन थीम हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, लाइक ईच एंड एवरी इंडस्ट्री विच इज प्रेजेंट इन टू द मार्केट. तुम बस स्क्रीनर पे जाओ एंड जस्ट फाइंड इन द स्क्रीन्स. तुम्हें जितने भी सेक्टर्स है द कंपनी रिलेटेड टू दैट सेक्टर यू आर एबल टू फाइंड इट. सो लाइक एज ऑफ टुडे इफ वी टॉक अबाउट होटल्स सेक्टर ना, तो लाइक जस्ट go here and like you are able to find it ki like hotels and restaurants mein you just came over here and you will find all the hotel companies which are listed, whether it's a large cap which is Indian hotels like Oberoi or Sami, Chalet, Lemon Tree, or otherwise you are able to find the smallest company like having a market cap of around 10 crores, 20 crores as well, 50 crores, 100 crores as well. So like all the companies which are there in that particular segment, you are able to find it out over here only. So like I will make a detailed video for that, but I just give you like it's a rough analysis of all the sectors which we are going to have discuss in this upcoming year. So first of all, the companies which are there in which are look quite interesting. So what do I again repeating this concept of tailwinds again. So what do I mean by tailwinds? If there is a like for example right now अगर हम Indian hotels की बात करें, so if you look at right so on if you value like valuations and all तो बाद में आएंगी, जस्ट टू वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे उसकी. बट एज ऑफ टुडे अगर हम सिर्फ इंडियन होटल्स की बात करें तो एंड जस्ट अगेन की लाइक आई हैव मेड द वीडियो अर्लियर एज वेल. तुम you just need to go through the con calls and you came to know about like what is happening in the hotel sector. Indian hotel is the largest hotel chains in the world as well. And like you know about the I think there is Ginger which is in upper scale or a mid scale level पे जिसपे like the rent is around 7 to 8 thousand. अगर हम ताज की बात करें तो like it's came at a premium segment around more than 15 to 16 thousand rupees per day का जो charge होता है. Apart from that, there are certain listed entities जहाँ पे they have a like very luxury rooms. So like there are different category of room in a particular hotel. Like अगर तुम ताज में जाओगे तो तुम्हें एक suite मिलेगा, suite which is I think it cost more than 60 to 70 or maybe even crosses 1 lakh rupees per night as well. So अब जस्ट गो टू द कॉन कॉल्स एंड सी कि लाइक पूरी मैनेजमेंट क्या कह रही है होटल इंडस्ट्री के बारे में. द कंपनी इज ग्रोइंग एट अ 15-20% on year बेसिस. And after having a market capitalization of more than
1 lakh crore. So these are the things, and not so whenever I talk about tailwinds now, it's basically the whole industry is doing well, not only Indian hotels in that particular industry is doing well, all the listed players from that are doing well. So what do I mean by tailwinds? As I already talked about कि like for example Indian hotels की अगर हम बात करें, the company saying कि like the foreign tourist arrival अभी if you look at the data as of 2019 2020, तो कोविड से पहले का जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था दैट इज नॉट क्रॉस्ड टिल नाउ. लाइक अगर फॉर एग्जांपल हर साल इंडिया में अराउंड 1 करोड़ टूरिस्ट अराइव करते थे, तो इन 2024 इट हैज नॉट क्रॉस दैट लेवल टिल नाउ. बट द मैनेजमेंट्स आर सेइंग कि लाइक नाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग ओपन, लाइक the foreign tourist arrival is crossing that level and might cross even further, like because you can see uh, like states like Kerala, Rajasthan, Jammu Kashmir, these are the states, Shimla, like not a state but basically these are the sites, and you know ki, like how you have seen around yourself as well ki, like maybe you or maybe your relatives are traveling a lot on these days. So why is that? So like there is a like बिकॉज होता क्या है कि वेन एवर द पर कैपिटा इन कंजम्पशन इंक्रीजेस, लाइक एज ऑफ टुडे अगर हम इंडिया की बात करें, द पर कैपिटा इज अराउंड $2,500. सो इफ दैट क्रॉसेस लाइक अराउंड 3,000 4,000, like तुम्हारी बेसिक नीड्स विच गेट क्लियर्ड विद टाइम, like फॉर एग्जाम्पल रोटी कपड़ा मकान विच वी हैव टॉक अबाउट, दीज आर बेसिक असेंशियल नीड्स. बट वेन द कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग एंड दैट पास दैट स्टेज ऑफ कि लाइक जो बेसिक नीड्स होती है रोटी कपड़ा मकान की, अगर वो पास हो जाए तो लाइक व्हाट आर द ट्रेंड्स, लाइक आई थिंक जैसे डेमोग्राफिक्स की बात करें, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री एज ऑफ टुडे, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमें अपने डेमोग्राफिक्स यूज करने चाहिए, विच लाइक द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें तो इज अराउंड 27 28. एंड दिस सेक्टर लाइक दिस trend will going to last for another so many years. Like I think जब भी हम बात करते हैं विकसित भारत, तो हम किस स्टैंड के बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं, किस द फाउंडेशन क्या है उस बात को कहने की, बिकॉज द यूथ इज देयर एंड लाइक कंट्री की ग्रोथ तभी होती है व्हेन द यूथ इज फोकस्ड, लाइक स्टार्ट contributing to the country's GDP by like gaining job, then they will get the salary or something by doing business, so like they can reinvest again. And by doing all of these things your consumption increases. For example अगर तुम्हारी रोटी कपड़ा मकान की जो जितनी भी needs है that has been like sorted, तो उसके बाद क्या करोगे? Like you have recently seen the example of Coldplay, like the tickets are selling in lakhs as well, of course in black market as well. Diljit Dosanjh tickets are getting sold out. I don't know, मतलब, like maybe that's the real thing कि like यार within the next 2 to 3 minutes the whole ticket has been sold out. So this is a luxury experience which youth is focusing on. Like for example right now अगर तुम देखो तो sneaker space में like 15 20 25,000 more than that as well, like there are shoes in 1 lakh 2 lakh, people are buying those shoes. I don't know where, but they're like other than that so the main focus is ki like when your basic needs has been cleared, तो तुम्हारा where you will spend your money on the experiences like traveling हो गया, tourism हो गया, these hotels where like you want पहले you stay at 1,015 to 2,000 rupees के hotel per day, but nowadays it's been 6,000 7,000 minimum, like अगर hot season में अगर तुम जाते हो to travel. So if you just go through the managements and all, to all the managements, not it's just about कि like सिर्फ Indian hotel की management is talking about, अगर तुम EIH में भी you are going की भी जो new hotels आ रहे हैं there, because and there is so many other things as well, like right now अगर इंडिया में around 200 to 50 airports है, तो government is planning कि you have seen this, like the current government is focusing so much on infrastructure. एंड राइट नाउ अगर तुम देखो ना तो गवर्नमेंट कर क्या रही है कि बाय पुटिंग मोर टैक्स ऑन द इंडिविजुअल्स, डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो वहाँ से ज़्यादा पैसा कंज्यूम करके दे आर गोइंग टू डिलीवर दैट money, they're using that money to develop these airports infrastructure and all, and the capex boom is seen from the government perspective कि like यार जो capex का boom है गवर्नमेंट वांट कि like वो बहुत ज़्यादा बढ़े.
सो द टारगेट ऑफ 2032 तक दे वांट टू डबल द एयरपोर्ट कैपेसिटी इन इंडिया. और वो कैसे होगा, लाइक बाय डेवलपिंग. एंड जब एयरपोर्ट्स आएंगे तो लाइक दैट इज द मैसिव अपॉर्चुनिटी जो ये सारी मैनेजमेंट्स बात कर रही हैं कि लाइक तुम चाहे देख लो सैमी होटल्स देख लो, EIH देख लो, ताज देख लो. बिकॉज होटल डेवलप होंगे तो नियर बाय में यू नीड अ होटल टू स्टे, and they're ready to collaborate. They are purchasing land for that as well. So I will make a dedicated separate video for that. It's just an overview of the sector कि like hotel industry is looking quite great over there. अगर तुम just बात करो कि like इनकी PPT में आ गए अगर Q2 की, तो you can see कि like जो इनका जो revenue, that how it has been increased over the past few years, like COVID के बाद when the disruption आया, तो you can just see कि like this is the quarter 2 जो which is the weakest sector. Because होता क्या है, you have seen कि like third quarter which is like your um, October, November, December. So इस टाइम पे like जो साया, there is a in Hindu calendar there is a term called saya in which you have that कि like most of the जितनी भी शादी होती है वो उन particular dates पे होती हैं. Then there is a Shraddh month as well जिसमें like around 14th December से 15 January तक there is no wedding which used to happen in India. uh, Maybe in mostly in Hindu culture we have seen as well. um, Apart from that उसके बाद फिर again तो Q3 and Q4 are the strongest sector because of the wedding season as well. And इस time पे you get winter holidays and all and most of the things as well. The weather is suitable just to travel. Weakest quarter होता है इनका Q1 and Q2 because उस time पे इतनी ज़्यादा traveling नहीं होती है. There is no wedding season because उस time पे I think there is 3 to 4 months जिधर there is no wedding which happens in that particular period, which is in Q2. I think it's June, July, and your August. So इस time पे you have not seen June, July, August and September as well. उस time पे you don't see any kind of weddings which are getting happened over there. तो उस वजह से होता क्या है, that is the weakest sector. But उस sector उस literally in that segment the you have seen कि like the best quarter the company has reported its results. So apart from that, if you just like, it's not all about कि like EIH या Indian hotel. अगर तुम like there is a company by the name of Lemon Tree, sorry, अगेन की लाइक इनकी अगर तुम ट्रांसक्रिप्ट में अगर इन जाओगे यू विल केम टू नो अबाउट कि मैनेजमेंट क्या बात कर रही है. अगेन सेम थिंग की लाइक द देर इज बेसिकली लेमन ट्री इज मुंबई बेस्ड जिनका प्रेजेंस आता है. EIH इज इन बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली NCR में भी देर इज वन होटल एज वेल. And like they have literally palaces like the rent per day is more than 60 to 70,000 over there. So and they're literally booked. अगर तुम like अगर if you just want to कि like चेक की like ये सच में पॉसिबल है या नहीं है, just go to these websites. EIH की वेबसाइट पे चले जाओ, इंडियन होटल्स की, शैलेट की, तुम्हें like बुकिंग ही नहीं मिलने वाली for next 2 to 3 months, like literally not even a single day. कि like I want to book this date just to travel and all, तुम्हें नहीं मिलने वाली dates. The occupancy of these hotels has been started increasing. So that is kind of a operating leverage which kicks in is in this particular sector at this point of time. So I hope this sector is mostly clear. I will try to make a particular video, but I don't want to give up any kind of a buy or sell recommendation. I just like letting you know कि like the EIH it's seems quite interesting as of valuation wise. बात करें तो EIH on the forward basis, like so EV is enterprise value upon my EBITDA, which is your operating profit margin. Let me just show you. So as of today अगर हम देखें तो operating profit margin, this is not the right term because I think at this point of time Q3 and Q4 will be the best quarter for all the hotel companies, not only EIH. एंड अगर हम इसकी बात करें तो लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इट कैन एक्सीड फर्दर. लाइक अगर तुम ईयर ऑन ईयर तुम प्रॉफिट मार्जिन की और सेल्स की बात करो तो Q2 में 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, वेयर एज सॉरी हेयर ओनली.
तो यू कैन जस्ट सी कि लाइक Q2 में 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था एज वेल, एंड जो नेट प्रॉफिट है दे आर हैव इंक्रीज बाय 40%. So there are three terms which needs to be taken in focus when you are analyzing hotel sector. One is ARR, ADR, basically average daily room rent per, another one is RevPAR, which is revenue per available room, and the third thing is occupancy. तो होगा क्या एज ऑफ टुडे की अगर हम सप्लाई एंड डिमांड सिनारियो की बात करें इन होटल सेक्टर, तो हो क्या रहा है कि द सप्लाई इन द टॉप 6 to 7 मेट्रो सिटीज, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, मुंबई एंड हैदराबाद, सो दीज आर द लाइक सिटीज विच आर लाइक उधर सप्लाई नहीं आ रही है लाइक होटल्स की. देर इज अ वेबसाइट बाय द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ होटली वेट. सो उधर तुम जाके देखोगे तो डिमांड एंड सप्लाई का तुम्हें सिनारियो समझ आएगा कि लाइक जो सप्लाई है विच इज इंक्रीजिंग एट अ CAGR ऑफ अराउंड 5 to 6%, वेयर एज द डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ 8 to 10%. तो व्हेन देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच, अब इन दिस सिनेरियो एज अ कॉमन सेंस अगर हम बात करें तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे. सप्लाई इज 5 to 6%, डिमांड इज अराउंड 8 to 10%. The supply is less than the demand, so there is a mismatch in the market. And जब भी डिमांड ज़्यादा होगी किसी चीज़ की सप्लाई से, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ का जो प्राइस है इट विल इंक्रीज बाय द नॉर्मल टर्म्स लाइक. एंड उसकी वजह से होगा क्या कि जो रूम की रेवेन्यू है एज ऑफ टुडे, अगर तुम बात करो एवरेज रूम रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो तुम अगर इन जितनी भी होटल की कंपनीज में जाके देखोगे, जैसे EIH का है तो 17% ARR बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस. लाइक फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर EIH के पर रूम का प्राइस अगर 100 रुपीज़ था, तो ऑन ईयर बेसिस इट हैज़ इंक्रीज टू 117 रुपीज़. एंड लाइक इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. अदर देन दैट ताज अगर देख लो तुम, ताज के अंदर देर आर सो मेनी ब्रांड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट जिंजर के बारे में. ओबरॉय में आई थिंक ओबरॉय इज द ओनली वन जो ओबरॉय के ही नाम से ही दे यूज टू ऑपरेट. then there are Marriott hotels and like जो like there are so many models as well, but उसकी हम डिटेल में डिस्कशन दूसरी वीडियो में करेंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द सैमी होटल्स के नाम से. सो इसका IPO अभी रिसेंटली आया था, अराउंड आई थिंक 4 quarters बैक ही आया था, लास्ट ईयर आया था. एंड वी कैन जस्ट सी कि लाइक हाउ द बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी लुक्स लाइक. सो एक बार इसमें द बिगेस्ट थिंग इन सैमी होटल इज लाइक कि जो इनकी जो बोरिंग्स है, इफ़ यू कैन सी कि लाइक यहाँ तक इन 2023 तक जब इनका IPO आया था, आई थिंक 2700 करोड़ की इनके पास लाइबिलिटी थी. एंड आफ्टर दैट they start repaying their debt. They are saying कि like they are going to be debt free in the upcoming years. For example अगर आज की हम बात करें तो 2000 करोड़ का डेट है. अगेन सेम थिंग, if the management is able to pay off their debt as of today, तो 2000 करोड़ पे अगर हम 10% का भी इंटरेस्ट मान के चलते हैं ऑन ईयरली बेसिस, सो 200 करोड़ इफ द नेक्स्ट ईयर, तो 200 करोड़ से दे आर एबल टू इंक्रीज द पैट बाय दिस ओनली. And one more thing ki like if you just see the pattern of this Sammy hotels, so you can see कि like पहले at around 127 rupees का इसने लो मारा, and from over there it has gone around 230 240. Then after that it's in a consolidation phase. So if you just look at the shareholding pattern of this company, so basically इसमें FIIs हैं, DIAs हैं, there is no promoter as of now. उसमें FIIs में there are people, so the management is there. I think 2010 के बाद से जो भी इसमें मैनेजमेंट है that is still there in the company as well. And if you can just see कि like from the till the time जब से IPO आया था, FIIs started selling their stake in the company, and it has gone to the public by the way, or the thing is over here कि like यहाँ से अगर 64% की अगर हम बात करें तो 58% पे आ गए. सो इधर हो क्या रहा है कि like जैसे ही थोड़ा शेयर प्राइस बढ़ता है, the FIIs try to sell their stake and they just move out from the like just by selling the shares they are able to
cash it that money and all. The thing is, which looks quite interesting in this company, is like, just look at the balance sheet of this sorry, P&L statement of this company. Just observe this for next 30 seconds, and just let me know in the comment section as well but you are able to observe from the this P&L statement. You don't have to look anything else. Just focus on this statement next for next 30 seconds, and let me know like what you have in mind. What are your observations from the P&L statement? So hope you observe something. So you can just see like the sales has been increased over the past few years, and like it has recently crossed the mark of 1000 crores as well. And what you can also observe in this कि like from last past many years, किसी ईयर 400 करोड़ का लॉस, किसी ईयर 200 करोड़ का लॉस, किसी ईयर अगेन 400 करोड़ का लॉस, अगेन 430 करोड़ का लॉस. सो फ्रॉम लास्ट पास्ट मेनी ईयर्स ना, यू हैव सीन कि लाइक जो यहाँ पे जितना भी नेट लॉस इकट्ठा हुआ है, they can use this net loss as a tax exemption. So for example, अब at this point of time तुम देख रहे होगे कि ट्रेलिंग 12 मंथ पे -46 करोड़ का लॉस है, एंड दे आर सेइंग कि इन Q3 दे विल बी एबल टू डू, दे विल बिकम प्रॉफिटेबल. एंड हम अगर पास्ट केस स्टडीज की बात करें तो जोमेटो के टाइम पे क्या हुआ था कि लाइक द जोमेटो का जो आईपीओ आया था, इट्स अराउंड 75 रुपीज. देन इट क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मार्केट में नॉइज एंड न्यूज होती है, तो उसकी वजह से दैट इट वॉज अ लॉस मेकिंग वेंचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उस टाइम पे हुआ क्या कि जो जोमेटो है, इट हैज़ क्रॉस्ड अ लेवल ऑफ अराउंड 160. एंड देन 160 से, बिकॉज मार्केट में जब 2021 के बाद जब कंसोलिडेशन में गई थी मार्केट, तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जो मार्केट में लिक्विडिटी सक हुई, एंड दिस वॉज अ न्यू एज स्टार्टअप बिजनेस. उस टाइम पे लॉस मेकिंग भी था. तो 160 से द स्टॉक वेंट डाउन टू 40 रुपीज. लाइक यू कैन सी के लाइक यार 80% रिडक्शन. बट आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट एंड ऑल, उसके बाद द जोमेटो स्टार्ट शोइंग ग्रेट नंबर्स, एंड आफ्टर दैट इट हैज बिकम नाउ प्रॉफिटेबल एंटिटी. एंड वी कैन सी कि लाइक 40 रुपीज से द प्राइस इज अराउंड आई थिंक 280-300 के बीच में. सो अगर इफ दैट सेम थ्योरी अप्लाइज ओवर हियर, तो वी कैन सी अ मैसिव रन अप इन सैमी एज वेल. सो दैट इज द थीसिस बिहाइंड दैट. एंड जो मैं टैक्स एग्जामिशन की बात कर रहा था, इफ द कंपनी बिकम्स प्रॉफिटेबल, तो लाइक दे डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस फ्रॉम Q3 Q4 एंड टिल द टाइम फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज दे आर एबल जो दे हैव लाइक अकाउंटिंग टर्म्स में यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस बिकॉज ऑफ द पास्ट साइकिल्स. तो अगर वो होता है तो लाइक from here onwards, like you can see a big inflection in the profits in SAMI in future. अगर हम बात करें ऑन ट्रेलिंग, सो TTM बेसिकली इज ट्रेलिंग 12 मंथ. सो फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में इट्स दिसंबर, बट अभी सिर्फ Q2 के रिजल्ट्स आए, तो Q3 ऑफ FY24, Q4 ऑफ FY24 विल बी इंक्लूडेड, एंड Q1 एंड Q2 ऑफ FY25 विल बी इंक्लूडेड इन ट्रेलिंग 12 मंथ. तो ये जितनी भी रेशियोज आ रही है फ्रॉम द लास्ट 4 क्वार्टर्स अगर हम ऐड कर दें, तो ये वाली दीज 4 क्वार्टर्स कि अगर हम ऐड करके देखें तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर आता है. सो इट्स नॉट द राइट मेट्रिक. अगर हम FY24 के बेसिस के ऊपर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर द मैनेजमेंट इज सेइंग कि लाइक दे आर एबल टू डू आई थिंक मोर देन 400 करोड़ का EBITDA इन द अपकमिंग ईयर्स, तो विच इज बेसिकली योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. तो लाइक you can just imagine ki like from over there they can increase it to more than um, and 400 के बाद in just next 1 or 2 years. सो उसके बाद यू कैन जस्ट सी, एंड एज ऑफ टुडे अगर हम EV अपॉन में EBITDA की बात करें, तो ताज होटल्स इज ट्रेडिंग एट अराउंड 25 या 26 के EV to EBITDA ऑन फॉरवर्ड बेसिस. वेयर एज अगर हम EIH की बात करें तो 14 to 15 के लेवल पे चल रहा है. सैमी इज द चीपेस्ट वन एज ऑफ टुडे. EV अपॉन में बेटा और कुछ नहीं होता. EV इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन.
अगर हम सैमी की बात करें तो इट्स लाइक रियली स्मॉल कैप, अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस द कंपनी के पास जितनी भी टोटल बोरिंग्स है विच इज़ अराउंड 2,200 करोड़, उसके बाद लाइक द कैश फ्लो द कंपनी विच हैज़, तो उसको अगर माइनस करके तो तुम्हारे पास ईवी निकल आएगा, एंड उसमें से अगर तुम उसके अपॉन में अगर तुम EBITDA की बात करो, तो अगर आज के एज ऑफ टुडे की EBITDA की बात करें तो दैट इज अराउंड 345। तो यू कैन जस्ट सी कि लाइक जो ईवी अपॉन में बट्टा है इट हैज कम डाउन टू वेरी अराउंड 11-12 लेवल्स। मतलब एज ऑफ नहीं सॉरी, आज के टाइम पे तो इट्स एक्सपेंसिव, बट लाइक ऑन फॉरवर्ड बेसिस इट्स अराउंड जो फ्यूचर एजम्पशंस जो हमने बात करी, तो उस बेसिस पे इट्स लुक क्वाइट चीप एज ऑफ टुडे। एंड as far as I remember, when in my last video जब I was talking about HBL Power and Frontier Springs, so उसमें last के एक section में I have discussed about कि like what are the tailwinds which a sector is going through, तो उसमें like EIH and उसमें बात करी थी। I think Samhi तो I think at the same price, I think EIH का as of today अगर हम बात करें तो the share price has given a run up, हाँ, तो आई थिंक इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 355 और 360, एंड एज ऑफ टुडे वी कैन सी कि लाइक 431 का प्राइस चल रहा है। सो लाइक दैट्स द थिंग कि लाइक यार एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू मेक मनी इन मार्केट्स यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू आर राइडिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर बेसिकली। एंड होटल, as we all know कि like it's a kind of a cyclical sector. So this is one of the sector. I hope you get a broad idea of this particular sector. I will try to make a detailed video on the sector ki like with proper things, with financial models as well, like but यार फाइनेंशियल मॉडल्स एंड ये सब ना बाद में आता है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपनी और अ बिजनेस, एंड उसके ऊपर यू हैव टू सी कि लाइक is this particular sector is like literally having some growth in the upcoming years। उसके बाद आती हैं सारी बातें कि यार द मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है कि लाइक राइट नाउ अगर हम सैमी की बात करें इट्स अ स्मॉल कैप राइट नाउ, EIH की बात करें इट्स अ मिड कैप अराउंड 25-30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वेयर एज लाइक इंडियन होटल्स की बात करें तो इट्स अ फेयरली लार्ज कैप, 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एज ऑफ टुडे। तो वो सब बाद में आता है कि वी हैव टू फाइंड द वन ऑफ द कंपनीज विच आर ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशंस जहाँ पे री रेटिंग का चांसेस हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने ईवी अपॉन में EBITDA की बात करी तो उधर री रेटिंग हो जानी चाहिए कि लाइक एज ऑफ टुडे अगर ताज को 25 का फॉरवर्ड पे ईवी अपॉन में EBITDA मिल रहा है, वेयर एज सैमही और EIH आर ट्रेडिंग एट अ लोअर लेवल। और शैलेट की बात करें आई थिंक वो भी 16-17 की उस पर। सो कैन दिस लाइक आई डोंट थिंक सो कि सैमी और EIH को ताज जितना मिलेगा, बिकॉज लाइक टुडे अगर हम देखें इफ a mutual fund, for example there are so many mutual funds, HDFC, Kotak, your UTI AMC, then there are so many mutual funds, and a particular fund where they are going to invest that money in these companies if they want to ride this hotel sector as of today। तो अब there are some foundations which mutual funds have। for example अगर एक म्यूचुअल फंड का AUM is around 50,000 crore rupees and they want to take a small chunk in like in a particular hotel company, तो वो 1 लाख करोड़ की कंपनी में जाएंगे या फिर लाइक fairly a small cap company like Sami which is around 4,000 or 5,000 crores। बिकॉज होगा क्या कि लाइक अगर 50,000 करोड़ है एंड इफ दे वांट टू टेक एन एलोकेशन ऑफ अराउंड फॉर एग्जांपल 3% इन द पोर्टफोलियो, तो वो 50,000 करोड़ रुपीज़ में से अगर 50,000 का 3% हम ले तो 1,500 करोड़ होगा। तो दे आर एबल टू टेक दैट अमाउंट इन टू लाइक अगर आज की बात करें तो आई थिंक 1,20,000 करोड़ का ताज इंडियन होटल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ओवर देयर दे कैन एबल टू टेक दैट परसेंटेज। बट अगर सैमी में दे ट्राई टू टेक दैट 1%, तो यार लाइक मोर देन 20-30% ऑफ द कंपनी विल बी अंडर देम। एंड अगर जैसी उन्होंने द राइज विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, लाइक एग्जाम्पल सैमी। बट होगा क्या कि इफ दे वॉन्ट टू सेल दैट स्टॉक तो उधर प्रेशर भी बनेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइक 4,500 करोड़ में से अगर तुम 1,500 करोड़ की सेलिंग करोगे तो हाउ विल इट इम्पैक्ट द शेयर प्राइस। एट द एंड ऑफ द डे सप्लाई ऑफ those share will be massive, and उधर से like you can see a huge downfall over there।
तो दिस इज द फाउंडेशन कि लाइक अगर इंडियन होटल्स पहले भी महंगा था और अभी भी महंगा हो रहा है बिकॉज ऑफ द थिंग कि लाइक होटल सेक्टर अच्छा कर रहा है, बट जो म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर contributing in Indian hotels because of the market capitalization of a company. Whereas like SAMI and EIH में there won't be because um, there will be some certain compulsions which mutual fund or like big institutions have to face. So that is the thesis over there कि like पहले भी इंडियन होटल्स महंगा लग रहा था बट अभी भी इसलिए महंगा बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के पास कोई चारा नहीं है कि या बिग इंस्टीट्यूशंस के पास कि लाइक दे कैन एलोकेट टू सम अदर कंपनी. So that's the reason. um, Other than that, so this is all about hotel sector. I think I have taken this particular list sector, but I hope it's worth it, and I will try to make a detailed video. Don't worry about that. But as of now, ki like just to give you the broader understanding of the certain sectors की like जो अच्छा करने वाले हैं और जो अच्छा कर भी रहे as of today. So next sector which we are going to talk about is textile sector. Before that, I just want you guys to go on YouTube and just type um, Bangladesh recent crisis. So a few months back, there is a news ki like I think around 2 to 3 months back, there was a news ki like the Bangladesh में there is a term called Takhta Palat. I don't know. It's a military coup. Like the army has taken over the country and like the prime minister. I think it's which was Mr. Mrs. Sheikh Hasina. I think she's residing in India under the security and all. बिकॉज उधर शी वॉज नॉट सेफ इन बांग्लादेश. तो अब हुआ क्या, जैसे ही दिस थिंग हैपन तो बांग्लादेश में हुआ क्या कि लाइक द बांग्लादेश की अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें आई थिंक मोर देन 15 और 20% कम्स फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर. एंड उसकी वजह से हुआ क्या कि देर आर कंपनीज लाइक योर जारा हो गया, H&M हो गया, there are other fashion brands, I don't know much about them but like basically all the major brands. तो बांग्लादेश का शेयर इज मैसिव इन एक्सपोर्टिंग दीज गारमेंट्स एंड ऑल बिकॉज देर आर सर्टेन रीजन्स फॉर दैट एज वेल. चीप लेबर, आई थिंक अगर हम लेबर की बात करें इन इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट कि वी हैव चीप लेबर, सो बांग्लादेश में उससे ज़्यादा चीप लेबर है. एंड उधर लॉज we are not that much stringent ki like you have to provide a certain conditions to the worker. अगर इंडिया में आओगे there will be massive protest against ki like human rights and all, but in Bangladesh it's a massive GDP, massive percentage of the GDP which contribute by the textile sector. तो उधर थोड़े laws भी are a bit like lenient over there. तो उधर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है and all, तो उधर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे. तो उस वजह से हुआ क्या कि लाइक द कंपनीज लाइक H&M, योर रेमंड एंड अदर कंपनीज, उधर हुआ क्या कि लाइक नाउ दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम, बिकॉज उधर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर होते थे एट द एंड ऑफ द डे. तो वो जो गारमेंट्स की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट ना हो जाए. सो नाउ इट्स लाइक दीज कंपनीज लाइक H&M, Zara एंड ऑल, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि लाइक एट द डोंट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट. व्हाई? बिकॉज लाइक अगर देर इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री लाइक और अ पर्टिकुलर सेक्टर विच इज नॉट डूइंग वेल, तो उसके बाद होगा क्या, लाइक अगर तुम्हारे पास यू आर कैरिंग 100 रुपीज़ एंड तुमने 100 यू हैव पुट इन केमिकल सेक्टर, अगर तुमने 2021 के बाद डाले होते तो आई थिंक यू विल हैव सीन अ मैसिव ड्रॉ डाउन ओवर देयर. तो उसकी वजह से इसलिए कहते हैं कि लाइक यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड योर. तो अब एप्पल क्या कर रहा है, लाइक एप्पल की डिपेंडेंस ऑन चाइना इज लाइक मैसिव फॉर लास्ट मेनी ईयर्स. बट आफ्टर 2020 when the whole world is against China because of the COVID reasons and किसी ने like चमगादड़ खा लिया था at the end. So उस वजह से हुआ क्या, लाइक चाइना हैज फेस्ड मैसिव प्रॉब्लम्स एंड यू हैव सीन कि लाइक सैमसंग हो गया, चाइना एप्पल हो गया, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई एंड अदर कंपनीज एज वेल कि लाइक दे आर सेटिंग अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन ऑल अदर कंट्रीज. तुम्हारी वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया. सो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई कि लाइक दे डोंट हैव टू डिपेंडेंट. अगर कल यूएस चाइना पे और ज़्यादा टेरिफ्स लगा देता है, जो लगा ही देगा बिकॉज आई थिंक जनवरी में जैसे ट्रम्प आते हैं तो उसके बाद देर आर सर्टेन टेरिफ हाइक्स विच वी कैन सी इन
by the US on China, and there will be a trade war situation which is like happening from a last past many years, but I think ट्रम्प के आने के बाद it will escalate further. तो उस वजह से होगा क्या कि लाइक जैसे एप्पल, वी हैव सीन कि लाइक मोर देन 40 और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ अभी रिसेंट क्वार्टर्स में. सो लाइक वी कैन सी कि लाइक ईएमएस स्पेस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का सेक्टर है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, तो दैट इज अगेन डूइंग वेल अलॉट. अगेन केम बैक टू आर बांग्लादेश स्टडी. तो उस वजह से हुआ क्या कि लाइक दीज कंपनीज रियलाइज कि लाइक यार हमें वी हैव टू डाइवर्सिफाई. अब ऐसा है कि लाइक एंड यार अब एज अ बिजनेस ओनर तुम सोचो कि अगर तुम्हें जैसे $250 में अगर इंडिया में पर मंथ की यू हैव टू पे ऑन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो वहाँ पे यू कैन इमेजिन कि लाइक वेर एज बांग्लादेश में अगर $120 या $140 पे, तो बांग्लादेश में ही तुम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करोगे बिकॉज ऑफ द चीप लेबर एंड ऑल. बट अब उस वजह से हो क्या रहा है कि जब बांग्लादेश में क्राइसिस अराइव हुआ, तो लाइक दीज कंपनीज हैव टू मेक श्योर कि लाइक उनकी जो सप्लाई चेन्स एंड ऑल है वो एट अ मतलब अगर बांग्लादेश में लाइक देर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन टुमारो और देर इज समथिंग हैपन, तो लाइक कंट्री शट डाउन हो जाए अगर बाई चांस, तो उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो दे आर डाइवर्सिफाइंग, एंड अब इसमें से देर इज अ टोटल चेन ऑफ दिस टेक्सटाइल सेक्टर. सो एक बार चेन को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर कंपनीज, अगर हम अगेन जस्ट गो बैक टू स्क्रीन, स्क्रोल डाउन हेयर, तो यू आर एबल टू फाइंड आउट कि लाइक टेक्सटाइल सेक्टर है alphabetical wise, by the name of the sector you are able to find the companies. So as we see like there are around 270 companies in a textile sector. And आगे बढ़ने से पहले let's understand the whole value chain of this particular sector. So I won't take much time over there. So this is like the value chain of this पूरी टेक्सटाइल का. तो यू विल फाइंड 5 kinds of a player, ठीक है. उसमें से फर्स्ट वन इज योर रॉ मटेरियल सप्लायर. तो यार द थिंग इज देर आर 5 segments: रॉ मटेरियल सप्लायर, देन द अदर वन इज यार्न, योर जो तुम्हारा धागा होता है, देन द फैब्रिक, जो धागे से यू आर एट द एंड तुम्हें एक क्लॉथ मिलता है जिससे तुम अगर तुम टेलर, आई थिंक अगर तुमने सूट या लाइक इफ यू वांट टू लाइक तुम्हें एक शर्ट बनवानी है, तो यू विल गो टू अ टेलर एंड यू गिव अ cloth to that tailor, and by taking all the measurements of your body, then he will make a particular garment from there. And फिर तो that is your fabric. and fabric के बाद क्या होती है, लेबलिंग एंड ऑल. एंड फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर होने के बाद योर पैकेजिंग, लेबलिंग, फिर उसमें तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइक एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है. तो बेसिकली इसमें 5 तरीके की, बिकॉज लाइक योर तुम्हारा ट्रिमिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट कैन बी डन बाय अ पर्टिकुलर वन प्लेयर. सो रॉ मटेरियल में द मेजर ड्रॉबैक इज कि लाइक इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कमोडिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक एज ऑफ टुडे अगर तुम्हारी कल कॉटन की क्रॉप खराब हो गई, तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि मे बी जो कॉटन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. बट अब इधर भी ये कैच है कि लाइक देर इज़ अ लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे टू मेंटेन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप इन इंडिया. तो जो गवर्नमेंट बॉडी है दैट विल नॉट अलाउ द कॉटन मटेरियल सप्लायर्स टू सेल देन. अगर जैसे 100 रुपीज़ का कॉटन का प्राइस आज चल रहा है, बट समझ लो क्रॉप खराब हो जाती है एंड उसका प्राइस अराउंड 200 चले जाता है. बट फिर क्या करेगी गवर्नमेंट बॉडी, बीच में आएगी एंड दे विल से कि लाइक तुम अपना जो कॉटन का प्राइस है तुम 150 से ज़्यादा नहीं बेच सकते. तो उसमें होगा क्या कि देर आर सो मेनी रेगुलेटरी, सेम एज लाइक कि अगर कॉटन की लाइक कॉटन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, एंड अगर 100 रुपीज़ का प्राइस है और वो समझ लो 30 तक चले जाए या 50 तक चले जाता है, फिर अगेन गवर्नमेंट बॉडी इंटरवीन करेगी कि लाइक जो सप्लायर्स होंगे जो मतलब बेचेंगे, तो वो बोलेंगे कि देर इज़ अ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आप 75 से कम में नहीं खरीद सकते इन रॉ मटेरियल्स. सो देर इज सो मच अप एंड डाउन्स, एंड इधर जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ब्राज़ील जाओगे, अमेरिका जाओगे, तो उधर भी दे आर यूज टू प्रोड्यूस कॉटन. बट उसमें क्या है कि लाइक देर इज इम्पोर्ट ड्यूटी, एंड इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से वो जो कॉटन है उधर का वो महंगा हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे. और उस वजह से होगा क्या कि लाइक वो कॉटन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इज ऑफ बेटर क्वालिटी देन द इंडियन वन.
बट अगेन ड्यू टू दीज कंपल्शंस एंड ऑल उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, एंड उसकी वजह से उसका प्राइस ज़्यादा हाइक हो जाता है। एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर पूरे वर्ल्ड में लाइक देर इज सम काइंड ऑफ कोई ग्लोबल सिनारी हो जाता है एंड ऑल, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी होते हैं इसके, बिकॉज इट्स अ कॉमोडिटी एट द एंड ऑफ द डे, एंड उसकी वजह से भी लाइक देर आर फ्लक्चुएशंस की लाइक कोई स्टॉक एक्सचेंज है तो उधर कुछ ना कुछ अगर कोई हैपनिंग होती है तो उसका असर भी कॉटन पे पड़ सकता है। सो वी आर नॉट, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ, देर आर देन वी आर कमिंग टू अनदर, लाइक जो तुम्हारा यान मेकर होता है, जो धागे की हमने बात करी, तो देर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ नितिन स्पिनर्स, देर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ वर्धमान टेक्सटाइल्स एज वेल। तो अगर तुम इनकी, देर आर सो मेनी कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक जो मेजर प्लेयर जैसे के पी आर मिल हो गया, देर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ, लेट्स सी कि लाइक एक से, तो देर आर सो लाइक सो मेनी कंपनीज ओवर देर। तो ये सब ये बात करनी है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम इनकी कॉन कॉल्स जाके पढ़ोगे, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस, जस्ट listen to those people who are running that business at the end of the day, because यार like there are certain companies जहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है they are more optimistic, they are more positive about the company than the people who are running that business. So उधर प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक अभी जैसे बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, तो द मेजर अपॉर्चुनिटी इज कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है कि लाइक एट द एंड ऑफ द डे पैसा, जो शिफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो रही है वो कहाँ से हो रही है, द पीपल हु आर मेकिंग गारमेंट्स ओवर देयर, जो ज़ारा एच एन एम एंड बाकी ब्रांड्स के लिए जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे एंड अपने नाम से बेच रहे थे, जैसे जूडियो को अगर तुम्हें पता हो, तो अगर जूडियो इज गिविंग एन ऑर्डर इन अ बांग्लादेश की कोई कंपनी में, एंड वहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाते हैं, तो जूडियो विल फाइंड आउट देयर सप्लायर्स इन इंडिया कि यार अब यू आर द वन हु विल मेक these particular 10,000 shirts for our Zudio, and उसके basis पे we are giving you orders. तो that is the opportunity which we are looking at right now. तो नितिन स्पिनर्स की अगर तो नितिन स्पिनर्स और वर्धमान टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें जो यान बना रहे बेसिकली, तो दे आर सेइंग कि लाइक यार उधर ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रहा है ना उधर डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से वी आर नॉट लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर कंपनीज। देन उसके बाद देर आर कंपनीज इन द फैब्रिक्स, ठीक है, जो फैब्रिक बना रही है, जो तुम्हारा यान, जो तुम्हारा धागा है उससे अब फैब्रिक बना रही है, तो you will come to know about many companies over there as well. There is a company by the name of Spot King India. There is a company by the name of Alok Industries, Century Textiles. So like there are so many companies, but at the end of the day यार होता क्या है कि आप, जैसे हमने नितिन स्पिनर्स की बात करी या वर्धमान टेक्सटाइल्स की या के पी आर मिल्स की, लाइक दीज आर द कंपनीज यार, अब ग्रोथ लाने के लिए कैपेसिटी, ऐसा हो कि डिमांड है तो एटलीस्ट कैपेसिटी, बट वो कह रहे हैं कि कॉन कॉल्स अगर तुम जाके सबकी पढ़ोगे ना, देर इज नथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक देर इज, आई थिंक एस बी अपैरल्स एंड संगम इंडिया के अलावा देर इज नथिंग मोर इंटरेस्टिंग अदर देन दीज टू कंपनीज। उस एंड उसमें भी इतना ज़्यादा लाइक ग्रोथ नहीं दिख रही है, लाइक अराउंड अगर 10-12% की ग्रोथ, अगर इतना लाइक यार 15%, और आई थिंक इट्स मोर देन 30-35 बिलियन डॉलर्स, एंड उसका भी अगर 15% इफ इंडिया इज एबल टू गेट फ्रॉम ओवर देयर, तो दैट्स अ मैसिव बूस्ट। बट हो क्या रहा है कि ये 10-12% की बात कर रहे हैं, विच इज नॉट सीम्स टू बी वेरी इंप्रेसिव। तो एंड एट द एंड ऑफ द डे कहाँ से इनसाइट्स है, बाय रीडिंग ऑल द कॉन कॉल्स एंड लाइक गेटिंग नो कि लाइक मैनेजमेंट कैसे तो हो रही है, तो लाइक के पी आर मिल्स देख लो तुम, एस पी अपैरल्स देख लो, नितिन स्पिनर्स, एस पी अपैरल्स को छोड़ के नितिन स्पिनर्स अगर तुम देख लो, या फिर वर्धमान टेक्सटाइल्स, तो दे आर लिटरली क्राइंग अबाउट कि लाइक यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, एंड द डिमांड इज नॉट देयर, एवरीथिंग इज नॉट अप टू द मार्क, नई कैपेसिटी कहीं आ रही है तो डिमांड नहीं है, तो लाइक अब होगा क्या कि लाइक कहीं कैपेसिटी तो आ रही है लेकिन उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है, अब डिमांड ही नहीं है, कैपेसिटी आ रही है तो ओवर सप्लाई हो जाएगी, ओवर सप्लाई होगी तो लाइक मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उधर से, तो लाइक दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो आई होप यू गेट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, बट अब राइट नाउ फिर उसके बाद जो B2B स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो देर आर 2 to 3 कंपनीज विच आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। सो लाइक देर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ वेलस्पन लिविंग, then
PDS हो गया, देन पर्ल ग्लोबल हो गया, गोकुल दास. सो दीज आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ गारमेंट्स. तो इधर यू आर फाइंडिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज. एंड इसके अलावा भी द कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स. तो this is a company, it's also a small cap company, but the best thing about this company, the name of the company is Kitex Garments. You can just see कि like as of today अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास. एंड लाइक अगर इनकी तुम पीपीटी में आओगे, द कंपनी हैज़ नॉट डन एनी काइंड ऑफ कॉन कॉल्स टिल येट, बट अगर तुम इनकी रीसेंट पीपीटी में आके देखोगे तो दे आर टारगेटिंग a guidance of around 1,000 crores in this particular year. And that's massive because अगर हम इसकी एज ऑफ टुडे अगर लास्ट ईयर की सेल्स देखें तो दैट इज़ अराउंड 617 करोर्स. तो 617 से दे आर ट्राइंग टू रीच एट अ मार्क ऑफ 1,000 करोर्स. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि लाइक अगर इन्होंने अपना टारगेट गाइडेंस दे रखा है, प्रॉपर टारगेट गाइडेंस कि लाइक Q1 में हम इतना करेंगे, Q2 में इतना करेंगे, Q3 में इतना करेंगे एंड Q4 में इतना करेंगे. तो लाइक यू कैन जस्ट सी कि लाइक 195 इन्होंने बोला था, 225, 280 एंड देन 300 करोर्स. तो इसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू रीच दैट 1,000 करोड़ का मार्क इन दिस फाइनेंशियल ईयर. एंड लेट्स सी कि लाइक इन्होंने अपना टारगेट अचीव करा है नहीं करा अभी तक. तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएंगे. सो दिस इज योर Q1. बेसिकली अप्रैल मई जून विल बी योर Q1. देन उसके जो रिजल्ट्स आते हैं दैट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम. तो वो या तो जुलाई के एंड में आएंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाते हैं. देन योर सेकेंड क्वार्टर विच इज़ लाइक जुलाई अगस्त सितंबर, एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट तक आ जाते हैं. तो लाइक ऐसे यू आर एबल टू फाइंड दिस. तो उन्होंने बोली थी 195 करोड़ की, दे हैव डन अराउंड 190 करोड़. दैट सीम्स ओके, ठीक है. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट कि 225 करोड़ की, तो 216 करोड़ का दे हैव डन द सेल. तो लाइक एग्जैक्टली नंबर नहीं, बट एटलीस्ट दे हैव टच देयर गाइडेंस की लाइक उन्होंने जितना बोला था अपनी पीपीटी में, दे हैव डन टिल नाउ. एंड दे आर टारगेटिंग अबाउट 280 करोड़ इन दिस Q3. एंड Q4 में दे आर टारगेट ऑफ इज अराउंड 300 करोड़. तो अगर हम अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, क्योंकि व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कंपनी तो तुम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर से ही तो हमें पता चलेगा कि लाइक द ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट. तो अगर लास्ट ईयर Q4 की अगर हम बात करें तो 173 करोड़ उन्होंने करे थे, एंड दे आर टारगेटिंग दिस Q4 इज ऑफ अराउंड 300 करोड़. तो यू कैन सी कि लाइक 173 करोड़ से वो कितने परसेंटेज, आई थिंक 70 to 80% की जंप की बात कर रहे हैं फ्रॉम ओवर देयर. एंड अगर Q3 में दे हैव डन अराउंड 180-160 करोड़ के आसपास, तो लाइक दे आर टारगेटिंग की लाइक इस Q3 में दे आर टारगेटिंग अराउंड 280 करोड़. तो अब that seems to be a very big guidance over there. But let's see कि like how the management अभी recently they came about the people and they saying कि like we are on track of all the things कि like जितना भी capex है इनका. But the biggest drawback in this कि like they have taken debt a lot. एंड लाइक इन्होंने 3,000 करोड़ का टोटल केपेक्स करने वाले हैं, जिसमें से 2,100 करोड़ का दे आर एबल टू सोर्स दैट डेट थ्रू, मतलब जो वो फाइनेंस करेंगे, जो डेट लेंगे वो इज़ अराउंड 2,100 करोड़. एंड जो रिमेनिंग तुम्हारा 700 to 800 करोड़ का जो बाकी डेट है, दे आर एबल टू डू इट बाय थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स एंड ऑल. तो दैट सीम्स टू बी बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक कि लाइक जैसे ही मार्जिन अगर ये Q3 में अपना जो गाइडेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उसके आसपास नहीं आ पाते, तो मार्केट विल पनिश देम. एंड लाइक मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन की लाइक अगर हम इसके स्टॉक चार्ट की बात करें तो वी हैव सीन कि लाइक लास्ट 1 ईयर में अराउंड 170-180 रुपीज़ से लाइक द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 700 लेवल्स. सो लाइक 4x हो गए लाइक लास्ट 1 ईयर में, बिकॉज मार्केट हैज स्टार्टेड डिस्काउंटिंग की लाइक जो फ्यूचर में होने वाले, मार्केट हैज अज्यूम कि Q1 में दे आर एबल टू मार्क द टिक ऑन देयर गाइडेंस,
Q2 में भी मार्क कर लिया। सो Q3 एंड Q4 में अगर वो नंबर नहीं आते जिनकी ये बात कर रहे हैं, तो मार्केट विल पनिश देम वेरी बैडली। एंड आज के टाइम में अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें कि लाइक जब भी हम बात करते हैं कि लाइक वैल्यूएशंस क्या हो रही है, तो 600 करोड़ की अगर बेसिस पे अगर हम 1000 करोड़ का देखें तो 60% की गाइडेंस पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एंड एज ऑफ टुडे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो इट्स अराउंड 4500 करोड़। एंड उसको अगर हम करंट जो स्टॉक का पीई है एज ऑफ टुडे इज अराउंड 47। इट सीम्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव कि स्टॉक का पी हमेशा 30-35 होना चाहिए या ऐसा। बट अगर हम अगेन फॉरवर्ड टर्म्स पे बात करें तो 1000 करोड़ की गाइडेंस पे अगर हम इनका एज ऑफ टुडे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें विच सीम्स टू बी अराउंड 20%, तो 20% का ज्यूम करके चलते 1000 करोड़ के उस पर। तो एंड उसका नेट प्रॉफिट अगर हम उसको आज के उससे डिवाइड कर दें तो द लाइक लास्ट ईयर का प्रॉफिट इज अराउंड 58 करोड़। एंड अगर इस गाइडेंस के अगर हम ऑन अ कंजर्वेटिव लेवल भी चलें तो 180 करोड़ का अगर हम मान के चलते हैं, बिकॉज अगर Q1 एंड Q2 में समझ लो इनकी सेल्स बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ जाती है, सेल्स पे अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अराउंड 25%, ठीक है, 20%। तो 20% पे भी अगर हम कंजर्वेटिव लेवल पे चले तो वी कैन अज्यूम एंड मेकिंग दीज अजम्पशंस, तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 30-35 का पीई के बीच में। एंड अब पेग रेशियो की बात करें तो विच इज़ योर पीई अपॉन में वॉल्यूम ग्रोथ, तो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट माना जाता है कि 2 से कम का पेग रेशियो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 2 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट लाइक अगर वैसे रीजनेबल जो प्राइस रहता है वो 1.5 तक रहता है, 1.5 या 2 के बीच में। बट अगर हम इसकी बात करें तो अगर पी अगर हम लेके चले फॉरवर्ड का 30 एंड 30 डिवाइड बाय 60 विच इज़ योर वॉल्यूम ग्रोथ, तो पेग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, योर पीई अपॉन में वॉल्यूम ग्रोथ विच इज़ 60% ओवर हेयर। एंड अगर फॉरवर्ड पीई की बात करें तो 35 का लेके चलते हैं, तो 35 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो यू कैन सी कि लाइक जो फॉरवर्ड जो पेग रेशियो बन रहा है वो 0.6 के अराउंड बन रहा है, तो विच इज सीम्स टू बी वेरी चीप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दिस कंपनी इज कि लाइक अगर यार दे आर नॉट एबल टू मेक देयर गाइडेंस, जो अभी इन्होंने 280 करोड़ की Q3 में बात करी है, तो यू कैन सी अ ड्रॉडाउन। अगर दे आर एबल टू अचीव द गाइडेंस देन यू आर एबल टू सी कि लाइक उधर रनअप भी बहुत तेजी से आएगा। एंड द बेस्ट थिंग कि लाइक हमें क्यों लगता है कि लाइक दे आर एबल टू डू देयर गाइडेंस विच दे आर प्रोमिस्ड। इनके 2 प्लांट आ रहे हैं, वन इज इन हैदराबाद। तो इनका जो लाइक दिस ईयर का गाइडेंस है जो ये दे आर टॉकिंग अबाउट, तो 1000 करोड़ का दे आर टॉकिंग अबाउट इन 2025। एंड देन बाई अपकमिंग ईयर्स तो दे आर ट्राइंग टू रीच अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 5000 करोड़। एंड उसके बाद दे आर ट्राइंग टू रीच अ गाइडेंस की इनकी एक सब्सिडरी है, तो दे आर ट्राइंग टू मर्ज इट एज वेल। तो by merging that subsidiary to 7500 crores की सेल they are targeting in the upcoming years. So like आज की अगर they are able to do a sales of around 1000 crores, तो 1000 करोड़ से 7500 crores की अगर ये सेल का टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन सी कि लाइक 7.5x का जंप इन द सेल्स। एंड अगर ये दे आर एबल टू, आई थिंक द स्टॉक कैन बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हेयर एज वेल। बट दे हैव टू बी ऑन ट्रैक। एंड जैसे हमने बात करी कि जो मैनेजमेंट है वो इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर सेल्स एंड ऑल। सो अगर हम इसकी बात करें तो जो तो इनके 2 प्लांट आ रहे हैं, एक फेज़ 1 में और फेज़ 2 में, जिसमें से दे आर ट्राइंग टू एम्प्लॉय अराउंड 2500 एम्प्लॉयज़ इन दैट। एंड उसकी वजह से लाइक जो टू रीच दैट गाइडेंस एंड ऑल। एंड इनका जो केपेक्स है वो लाइव एक तो दिसंबर 2024 में हो रहा है, एंड जो दूसरा केपेक्स है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइव इन 2025। तो एंड ये इनके प्रोडक्ट्स हैं विच दे आर ट्राइंग टू मेक। एंड they are supplying to these big companies as well. And they are also having an advantage in Telangana, जहाँ पे like they are getting जो land है at a cheap rate,
एंड क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव सम सब्सिडीज ओवर देयर, एंड उधर जो वाटर का जो प्राइस है, दे आर ऑल्सो गेटिंग एन एडवांटेज ओवर देयर. तो बाई यूटिलाइजिंग दीज एडवांटेजेस यू कैन सी कि लाइक जो इनकी जो एक्विजिशन एंड जो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी जैसे इनके प्लांट लाइव जाते हैं. एंड दैट्स इट. बट यू हैव टू कीप अ ट्रैक, लाइक जब जब इनकी गाइडेंस द डे हमने एक्सपोर्ट की बात करी, तो जो चाइना एंड बांग्लादेश का जो मेजर एक्सपोर्टिंग शेयर है, तो यू कैन जस्ट सी कि लाइक यार यहाँ पे कितना ज़्यादा शेयर है, एंड इफ़ दे आर एबल टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ओवर देयर कि लाइक एटलीस्ट 10-15% इंडिया में आता है. सो लाइक यू कैन इमेजिन कि लाइक उसमें से द आई थिंक द टारगेट इज एज आई ऑलरेडी मेंशन कि लाइक 7,500 करोड़ का जो टारगेट कर रहे हैं, एंड दे आर टारगेटिंग दैट सेल्स की लाइक जो 5,000 करोड़ की सेल दे आर एबल टू डू बाय द टाइम जो इनका दोनों, एक तो जो अभी दिसंबर में जो प्लांट लाइव जा रहे हैं एंड जो नेक्स्ट ईयर जो जाएगा, तो उसके थ्रू दे आर एबल टू टच अ गाइड रेवेन्यू ऑफ और सेल्स ऑफ अराउंड 5,000 करोड़. एंड की एक सब्सिडरी है जो चिल्ड्रन है उसमें, तो लाइक बाय मर्जिंग दैट एंटिटी इनटू किटेक्स ओनली, तो 7,500 की गाइडेंस की दे हैव टॉक्ड अबाउट. सो दिस इज वन कंपनी. एंड but like it's again not a buy or sell recommendations through any means. It's just to ki like kaise we look for the ideas ki like because at the end of the day everyone is looking for the growth and all. And I think this company is sitting on an operating leverage as well. जैसे इनका प्लांट अभी दिसंबर में लाइव जाए, तो आई थिंक Q4 में इनके जो नंबर्स हैं दे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अ बिट बेटर. एंड देर आर कंपनीज बाय द नेम ऑफ PDS लिमिटेड. PDS लिमिटेड में द थिंग इज कि जैसे मैंने सोर्सिंग की बात करी, तो दे यूज टू सोर्स फैब्रिक एंड दे हेल्प दीज कंपनीज जो B2B में स्पेस में होती है, इनको फैब्रिक सोर्स करने में हेल्प करती हैं. इनकी जो प्रेजेंस है दैट इज़ अक्रॉस ऑल ओवर मेनी प्लेसेस. बट आई थिंक अभी नॉर्थ अमेरिका में, बिकॉज हुआ क्या कि कोविड के बाद जो उधर के रिटेल स्टोर्स थे, तो उधर हुआ क्या कि उधर इन्वेंट्री स्टक हो गई बिकॉज ऑफ कि लाइक उधर डिमांड नहीं थी. एंड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years उधर क्या हुआ कि जो डिमांड नहीं थी, तो उनके पास इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू लाइक scale up from over there. But things like it's been around 4 years, and now the demand is coming back because inventory खाली हो गई है, and now they are again like filling up their inventory and all. तो तुम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात करो, तुम PDS की बात करो, अगर हम गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात, तो लाइक and yeah, remember one thing. Write it down somewhere if you are making notes of this video. uh, Sectors moves and trends. For example, हमने लास्ट में जब हमने बात करी कि लाइक देर आर इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बूम आया, so we have seen कि like not only the cable and wires, every company like into that manufacturing of uh, construction of roadways, the equipment manufacturing companies all were doing great, like Polycab, KEI. It's not कि like जब cables and wires के space में not only KEI, Polycab, छोटी companies like Finolex Cables, then there is a Delta Cable, then there are so many companies like पूरी particular space में everyone is doing great. तो एट द एंड हमें ये देखना है कि लाइक द इन पर्टिकुलर सेक्टर व्हेन वी आर एनालाइजिंग ऑल दीज कंपनीज, तो सॉरी, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में आ रही है, एंड हमें जो वैल्यूएशन हैं वो रीजनेबल कहाँ पे मिल रही हैं. सो अगर हम गोकुलदास की बात करें, अगेन यू जस्ट केम टू नो, एंड इनकी जब ट्रांसक्रिप्ट में बात करोगे तो यू विल एबल टू नो कि लाइक यार जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है, दे आर अगेन टारगेटिंग अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 15 to 18%. बट दैट सीम्स कि देर आर अदर प्लेयर्स विच आर ट्राइंग टू गिव बेटर, trying to do better other than this. But again, agar like the day you start going through all these con calls, you see कि like there is at least tailwind from the um, Bangladesh ka crisis, and like retail apparel maybe like the companies are giving so much because consumption is humongous over there. So there is a company by the name of Pearl Global, by for example. So
this is one of the company which is like doing great. I think the stock has been like um, a kind of a consistent compounder from last few years. And you can just see कि like अगर maximum chart में तो we can see कि like it's great. But अगर हम लाइक ईयरली बेसिस पे बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इनकी कॉन कॉल में अगर तुम जाके बात देखो, तो यू विल केम टू नो अबाउट कि लाइक द मैनेजमेंट इन सेइंग कि लाइक 15 to 20% के रेवेन्यू पे ही दे आर यूटिलाइजिंग दैट कैपेसिटी, एंड लाइक उसी के रेट पे दे आर ट्राइंग टू ग्रो फॉर द FY 2025 एंड फर्दर एज वेल. अगर हम इसकी बात करें तो अराउंड 34-35 का पी, इट्स स्टिल एट अराउंड 1.5 का पेग रेशियो. अगर 15% की गाइडेंस लेके देखते हैं तो इट विल बी अ बिट एक्सपेंसिव, बट अगर 20% की गाइडेंस विच दे आर एबल टू अचीव, तो अगेन दैट गाइडेंस कम अराउंड 1.75 का पेग रेशियो विच इज बिलो लेस देन 2. सो there is one more company. It's again a very small company, but again the guidance is bit there. Not guidance, basically the that again sitting on an operating leverage, as we earlier talked about in Kitex Garment. So this is a company trading at around 700 crore, 800 crore का market capitalization. And उस पे the अगर हम इनकी P&L statement पे देखें तो like we have seen कि like you won't able to see massive over there. But अगर हम quarterly results, because quarterly results are more important than the like past results, तो like अगर हम इनके quarterly results में जाके देखें from last 3 quarters, what you can see, like just observe this thing कि like giving you around 10 seconds to observe, and let me know in the comment section कि like what are you able to observe. So, are you able to observe कि like from last 3 quarters they are doing a sales of more than 50%, 60%? Can you imagine कि like a company which is like you are able to find in a micro cap space, like 1,000 crore से कम के कंपनीज को माइक्रो कैप कहते हैं, 1,000 से 10,000 15,000 crore को स्मॉल कैप, मोर देन 15,000 crore का मार्केट कैप टू 50,000 crore का मार्केट कैप इज अ मिड कैप, एंड लाइक उसके बाद वी कंसिडर देम एज अ लार्ज कैप. तो you can see कि like there is a company which is growing at a 50% CAGR, and like we can see in the stock price as well. अगर हम last 1 year के stock price की बात करें तो like we have seen a huge run up here as well. तो and अगर like the company like give quarterly में PPT, तो you can just see कि like the companies been, तुम्हें जितनी भी companies की like about information है, you can able to find out the company के अब like brands में जाके देखो कि like किसको supply कर रहे हैं, तो यू आर एबल टू नो अबाउट कि लाइक ये ट्रेंट इनका कस्टमर है, रिलायंस इनका कस्टमर है, वी मार्ट, स्नैपडील, एंड देर आर मेनी, मिंत्रा, लाइक ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स यू हैव हर्ड अबाउट. एंड लाइक दिस इज द थिंग कि लाइक इन जो कस्टमर्स आर देयर. अब जैसे हमने V2 रिटेल की बात करी, वी मार्ट की बात करी, तो अब इधर क्या चल रहा है इंटरेस्टिंग कि लाइक इनकम, अब इस कंपनी को पढ़ के पता चला कि अब इधर भी ग्रोथ आ रही है. लाइक अब वी मार्ट की अगर हम बात करें, स्नैपडील की बात करें, जैसे अब उड़ान है, लाइक अमेजोन की बात करें, तो दीज आर द, अब इसको पढ़ने के बाद देन अब इस सेक्टर की जैसे हमने बात कर ली, तो लाइक इस इन द सेम सेक्टर लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ दिस. सो बेला कासा की अगर हम जस्ट वैल्यूएशन वाइज बात कर ले तो स्टॉक भी हमें थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा 51%, बट अगेन जस्ट डूइंग दैट सेम फॉरवर्ड का कैलकुलेशंस की अगर दे आर एबल टू ग्रो, आई थिंक दे आर मेकिंग 1 करोड़ अपैरल्स पर ईयर, तो वो टू करोड़ तक लेके जा रहे हैं. एंड again that's a sign of an operating leverage by utilizing that growth and all. And
अब इसके अलावा द कंपनी इज, जैसे हमने विशाल मेगा मार्ट की बात करी, वी टू रिटेल की बात करी, तो वी टू रिटेल लाइक अब यू कैन जस्ट सी कि लाइक द स्टॉक अगेन हैज गिवन अ मैसिव रन अप ओवर द पास्ट 1 year only. I think the stock has been 4x 5x, and the market capitalization is not that much. It's a fairly a small cap company again. बट अगर तुम इनकी क्वार्टरली सेल्स की अगर हम ग्रोथ देखें, तो व्हाट यू कैन इमेजिन लाइक व्हाट यू कैन सी, सॉरी, इन दिस कि लाइक from last past four quarters, like 56% growth, 53% growth, 57% growth, then 64% growth. तो दिस इज द थिंग. एंड अब लाइक ये स्क्रीनिंग में आ गई. अब आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन स्क्रीनिंग कि लाइक अगर तुम्हें दी इन ट्रेंड्स को पहले पकड़ना है, लाइक अब तो लाइक इट्स गिवन अ मैसिव रन अप, लाइक 4x हो चुका स्टॉक. बट अगर तुमने यही ट्रेंड अगर पहले पकड़ लिया, लाइक ऑन दिस क्वार्टर ओनली, कि लाइक तुमने 3 क्वार्टर बैक में देख लिया कि यार ये 50% की इधर ग्रोथ आई है, तो तुम्हें ये पता चल गया कि लाइक जब तुम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब रिजल्ट्स आते हैं, तो यू आर एबल टू फाइंड कि लाइक इस कंपनी में इस क्वार्टर में 50% ग्रोथ आई है. तो अब तुम क्या करोगे, लाइक जस्ट गो इधर एंड लाइक 4 क्वार्टर पहले की एक बार ट्रांसक्रिप्ट या कॉन कॉल जाके पढ़ लो एक बार कंपनी की. देन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि वहाँ से क्या ग्रोथ गाइडेंस है, एंड देन फिर कंपनी इज एबल टू डिलीवर दैट 4 क्वार्टर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ. अब इन दिस क्वार्टर ओनली दे आर एबल टू ग्रो देयर सेल्स बाय 64%. तो अब इधर ट्रांसक्रिप्ट जाके पढ़ो यार कि लाइक कैसे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने कितने स्टोर्स ला रही है, फिर उधर से दे आर एक्सपेक्टिंग कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी हो सकती है, फिर ये कोई न्यू जोग्राफी में दे आर एंटरिंग इनटू और नॉट. And by doing all these due diligence, that is the most important work which you have to work always. Like not this only कि like एक विशाल मेगा मार्ट, अब तुम बोलोगे कि like यार the stock P is around more than 100. तो ट्रेंट, like जैसे हम बात करें तो ट्रेंट इज द प्लेयर विच हैज शोन की लाइक पहले आई यूज टू थिंक कि लाइक यार ट्रेंट का इतना ज़्यादा पी है, इसका पी लाइक डी मार्ट हो गया, डी मार्ट में सेल्स में ग्रोथ चली गई लाइक उसकी भी अभी हम बात करते हैं. बट ओवर द लाइक पास्ट मेनी ईयर्स लाइक द स्टॉक हैज़ बीन अ मल्टीबैगर. एंड वो क्यों हुआ कि लाइक बिकॉज अगर तुम इनकी क्वार्टरली सेल्स में जाके ही देखो फ्रॉम द लास्ट पास्ट past many quarters, like you can see कि like 40 50 60 70% का growth आ रहा है. And not only just for one quarter, like if you just see कि like यहाँ पे quarterly results में year on year basis पे अगर हम बात करें, यू कैन सी लाइक यार टू वे सॉर्ड यार, लाइक बिकॉज हुआ क्या कि अभी रिसेंटली जब Q2 के नंबर्स आए थे ट्रेंट ने, द कंपनी हैज grown at a percentage of 38% year on year, which is not a small amount, but who like market was expecting a bit more as well. But like जो ग्रोथ है वो मार्केट को लगा कि इससे और ज़्यादा आनी चाहिए थी, अराउंड 45 या 50%. बट ट्रेंड वॉज नॉट एबल टू डिलीवर दैट रिजल्ट, एंड उधर स्टॉक की थोड़ी पिटाई हुई थी. सो द डे अब होगा क्या कि लाइक विशाल जैसे हमने V2 रिटेल की बात करी, तो अब फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जब तक ये रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, द मार्केट विल रिवॉर्ड दिस कंपनी एज वेल. बट द डे वो 30 40 50 60% की जो ग्रोथ है, अगर वो केम डाउन अराउंड 15 या 20 25% भी आई, तो मार्केट विल बीट दैट स्टॉक. तो दिस इज द थिंग, नॉट ओनली V2 रिटेल. अगर तुम विशाल मेगा मार्ट, दिस इज अ रीसेंट IPO लिस्टिंग. तो एंड यू नो कि लाइक जो आई थिंक विशाल मेगा मार्ट जो है वो V2 रिटेल के जो ओनर है उन्होंने ही स्टार्ट करा था. बट ड्यू टू आई थिंक 2008-9 के आसपास दे हैव सोल्ड दैट अराउंड, मतलब बहुत लाइक आई थिंक मोर अराउंड 100 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल कर दिया था. फ्रॉम ओवर देयर द कंपनी हैज़ बिकम अ 50,000 करोड़ का मार्केट कैप. तो लाइक यू कैन सी कि लाइक 100 करोड़ से 50,000 करोड़ की जर्नी द कंपनी हैज़ शोन इन द लास्ट 10 years. And like I think, but from over there he started his venture again in V2 retail, and from over there he is able to scale this one as well. So अगर तुम विशाल मेगा मार्ट की बात भी करोगे, तो उधर भी दे आर इनटू अफोर्डेबल
अफोर्डेबल फैशन लाइक जूडियो है, जैसे उधर तुम 999 के प्राइस में यू आर एबल टू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो विशाल मेगा मार्ट इज डूइंग उससे भी कम, लाइक 500 600 तक मैक्सिमम उनकी रेंज आती है, एंड दे आर इनटू डिफरेंट जोग्राफीज। जैसे जूडियो तुम टियर 1 सिटीज़ में देख लोगे, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, एंड मेनी मोर। बट विशाल मेगा या मार्ट या वी टू रिटेल यू विल फाइंड इन टियर 2 टियर 3 सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ रही है। So this is one of the sectors, apart from, so we have discussed two sectors till now. One is hotel sector and another one is textile sector. Textile sector में हमने बहुत सारी पूरी वैल्यू चेन की बात करी कि लाइक रॉ मटेरियल होता है, देन यान होता है, देन फैब्रिक, देन B2B players which like manufacture garments for big companies, and then at the end में there are companies like Reliance Mart हो गया, V2 Retail हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, तो उधर like that is that used to be sell at to the consumers. So basically that's a B2C section over there. um, I think I have made literally very long videos. I think the video is more than 1 hour, and I will ट्राई कि लाइक जो नेक्स्ट 3 थीम्स हैं वो इतनी डिटेल में ना जाए, बिकॉज द होल आइडिया इज जस्ट टू डिस्कस ऑन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बट अपने लाइक पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ही बिल्ड कर ली है इन दिस वीडियो। सो आई विल ट्राई टू कवर दोज नेक्स्ट 3 थीम्स इन द part 2 and wishing you a very happy new year. Hope this year will bring a lot of happiness in your life, and that's all from my side. Thanks for listening, and goodbye.